Start with the last exercise of this chapter 1.6. अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज़ फाइंड करनी है. We have to find the values. First one is 64 raised to 1 by 2. अभी 64 raised to 1 by 2 है, तो इसके लिए पहले हम लोग इसके ये जो नंबर है इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. How to find the factors? This is the way of finding the factors. 64. अब ये लास्ट में 4 है तो 2 से जाएगा ही. 2 3s are 6 and 2 2s are 4. Again it will go by 2. 2 1s are 2, 2 6s are 12. Again even numbers है तो 2 से जाएगा ही. 2 8s are 16. Again 2 4s are 8. 2 2s are 4 and 2 1s are 2. तो ये हम लोग को मिल गए फैक्टर्स ऑफ 64. कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6. तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपने 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 1 2 3 4 5 6. So after factorization we are getting this number as 2 into 2 into 2, 6 times 2 and the whole raised to half. So this is actually 2 raised to 6. We will write it in this form. 2 raised to 6, the whole raised to 1 by 2. I will solve these brackets. Equals to 2 raised to 6 into 1 upon 2. This 2 and say this 6 will cancel it out. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So this becomes 2 raised to 3 equals to 8. The second sum is 32 raised to 1 by 5. So we'll find the factors for 32. This is even number, so it will go by 2. 2 1s are 2, 2 6s are 12. 2 8s are 16. Then 2 4s are 8. 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So this is how many 2s are there? 5 2s. So we'll write it in the form of 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 1 2 3 4 5. The whole raised to 1 by 5. So this will write 2 raised to 5 into this 1 by 5. So this 5 will get cancelled and your answer is 2. This is how you are going to do the simplification part. Third one is 125 raised to 1 by 3. Again we will find the factors for 125. So at the end 5 is there, so it will go by 5. 5 2s are 10, 25, 5 5s are 25. And again 5 5s are 25, 5 raised to 1. So 5 is 3 times. So first we will write in this form 5 into 5 into 5, the whole raised to 1 by 3. And this will come as 5 raised to 3 into 1 by 3. Now this 3 and 3 will get cancelled and our answer is 5. So this is the method of finding it. Now next is second part का first one है 9 raised to 3 by 2. So यहाँ पे भी 9 के factors find करने हैं. 9 it will go by 3 only. So 3 3s are 9 और 3 1s are 3. तो इसका आंसर हम लोग को मिला 3 into 3 the whole raised to 3 by 2. 3 into 3 3 2 times है तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 3 raised to 2 और into 3 by 2 as it is. So ये 2 और ये 2 cancel out हो जाएगा. So answer is 3 raised to 3. And what is 3 raised to 3? 3 3s are 9 and 9 3s is 27. So your answer is 27. Second is 32 raised to 2 by 5. तो यहाँ पे भी हम लोग 32 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. It will go by 2. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, and again 2 4s are 8, 2 2s are 4, and 2 1s are 2. So 2 how many times it is? 1 2 3 4 5. तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2 raised to 5 into 2 by 5. तो यहाँ पे 5 and 5 will get cancelled out, and your answer will be 2 raised to 2, and 2 raised to 2 is 4. So your answer is 4. Third sum is 16 raised to 3 by 4. यहाँ पे 16 के फैक्टर्स हम लोग फाइंड करेंगे.
2 8s are 16, then 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So 2 how many times it is? 1 2 3 and 4. So we can write 2 raised to 4 into, और ये 3/4 यहाँ पे. So ये 4 और ये 4 cancel out हो जाएंगे. So your answer is 2 raised to 3. And 2 raised to 3 is what? That means 2 will multiply 3 times. 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. So your answer is 8. Next one is 125 raised to minus 1/3. So again we'll find the factors of 125. तो अभी लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा. 5 2s are 10 and 5 5s are 25. 5 5s are 25 and 5 1s are 5. तो 5 raised to 3 into minus 1/3. अभी 3 3 कैंसिल, तो आंसर बचा 5 raised to minus 1. अब ये नेगेटिव इंडेक्स है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग ये 5 डिनोमिनेटर में लेंगे. सो द आंसर इज़ 1/5. इसको डिनोमिनेटर में लेने से पावर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है. सो आंसर इज़ 1/5. सो दिस वाज द सेकेंड पार्ट. और द थर्ड पार्ट इज सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई का फर्स्ट पार्ट. अब ये जो पार्ट है ये कुछ फॉर्मूलेस पे डिपेंड है. एंड द फॉर्मूलेज आर फॉर इंडाइसेस. तो इंडाइसेस के पहले मैं फॉर्मूले बता देती हूँ क्या क्या है. फर्स्ट वन इज़ a रेस टू m इंटू a रेस टू n इक्वल्स टू, मीन्स अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. m प्लस n. a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n. पावर्स विल गेट एडेड. सेकेंड है a रेस टू m अपॉन a रेस टू n. अगर बेसिस सेम है और ये डिवीजन है दैट मीन्स तो उसके पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. m माइनस n. इफ द बेसिस आर सेम विद डिफरेंट पावर्स एंड इट इज़ डिवीजन तो पावर्स सब्ट्रैक्शन होंगे. a रेस टू m माइनस n. a b द होल रेस टू m. अगर दो नंबर्स का एक ही पावर है तो ये पावर दोनों के लिए एप्लीकेबल है. So you can write a raised to m into b raised to m. And if the power is negative, we can make this power negative as positive. उसको डिनोमिनेटर में लेके तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाता है. अगर पावर नेगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में लेना पॉजिटिव हो जाता है. नेक्स्ट इज a raised to m ब्रैकेट a raised to n. अगर ब्रैकेट में पावर्स है, बीच में ब्रैकेट है तो इट विल गेट मल्टीप्लाइड. m इंटू n. पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड. फिर अगर ऐसा है a रेस टू m द होल रेस टू 1/n. सो यू कैन राइट इट एज a रेस टू, ये m और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बिकम m/n हो जाएगा ये. अगर ये ऐसा है a रेस टू m अपॉन b रेस टू n देन अगेन यू कैन राइट इट लाइक दिस. कॉमन एक बार लिख के हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. If it is under root y the whole raised to n, so you can write it as 1/y raised to n. इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं. सो ये कुछ रूल्स है और इसके रूल्स के हिसाब से विल फॉलो द नेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट रिमेंबर दिस रूल्स फॉर डूइंग द सेकेंड पार्ट सिंप्लीफिकेशन. द फर्स्ट सम है 2 raised to 2/3 इंटू 2 raised to 1/5. अब यहाँ पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है दैट मीन्स पावर ऐड हो जाएंगे. सो इक्वल्स टू बेस हम लोग ने सेम लिखे 2 और ये पावर्स को ऐड करेंगे 2/3 प्लस 1/5. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है तो ये दोनों डिनोमिनेटर क्या करेंगे हम लोग? इक्वलाइज करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये बन जाएगा 2 raised to 5 इंटू 2 इज़ 10 प्लस 1 इंटू 3 इज़ 3 अपॉन, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 5 3 ज़ा 15. तो ये आंसर बन जाएगा 2 raised to 13/15. सो दिस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट इज 1/3 raised to 3 ब्रैकेट 7. तो यहाँ पे जो रूल है ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ये कहाँ पर है? हियर
ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम, तो एक कॉमन भी लिख सकते हैं, तो अगर कॉमन है तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1 रेस टू 7 अपॉन 3 रेस टू 3 इंटू 7, ये पावर दोनों के लिए आ जाएगा। तो 1 रेस टू 7 इज़ 1 ओनली अपॉन 3 रेस टू 21. This is your solution. Third is 11 raised to half upon 11 raised to 1 by 4. तो bases are, base is the same, so powers क्या हो जाएंगे, subtract हो जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। सो बेस सेम है, हम लोग उसको बेस एक बार लिखेंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1 by 2 माइनस 1 by 4। अगेन द सेम केस, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम लोग इक्वलाइज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सो 4 1 इज़ 4 माइनस 2 1 इज़ 2 अपॉन 2 4 इज़ 8, तो 11 रेज टू 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 अपॉन 8। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8, सो इट विल बिकम 11 रेज टू 1 अपॉन 4। दिस इज़ योर आंसर, 11 raised to 1 by 4. Fourth one is 7 raised to half into 8 raised to half. अभी पावर सेम है, तो पावर सेम है तो हम लोग उसको साथ में लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, सो वी कैन राइट ये इस टाइप का, ये पावर्स सेम है दोनों के, नंबर्स अलग अलग है तो उसको हम लोग साथ में भी लिख सकते हैं। तो इट विल बिकम 7 इंटू 8 द होल रेज टू हाफ। अब ये 78 नहीं है, इट इज़ 7 इंटू 8, बीच में डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 7 इंटू 8 इज़ 56, सो योर आंसर विल बी 56 रेज टू हाफ। दिस इज योर आंसर। सो हियर वी हैव completed this lesson, number system. Continue with the next chapter in the next class. Please share, like and subscribe my videos. Thank you.